मोबियस फाउंडेशन ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया। इसमें जलवायु कार्रवाई और स्थिरता के लिए शिक्षा विषय पर हुए सेशंस पे जाने माने वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मोबियस फाउंडेशन और इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने साझा अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मोबियस फाउंडेशन के चेयरमैन प्रदीप बर्मन और राजदीप सरदेसाई की खास बातचीत हुई। Thank you very much, ladies and gentlemen, and welcome to this very special show that we are having, where our focus is on the topics of the 21st century, really. Climate action, sustainability, and population dynamics. That's what we are going to focus on, and I'm delighted to be in the company of Mr. Pradeep Burman, the chairman, Mobius Foundation, because the foundation is the one which has driven this entire project. And as I was telling Mr. Burman before we met here on stage, is that you are in tune with what the new age India really needs. We need less politics, and we need more focus on real issues of our times. So Mr. Burman, I wanted to understand from you, your vision, why you chose these issues, and why you believe that these issues are the relevant issues of our time. The reason I chose these issues, there were about at least 17 issues from the sustainable development, like the SDGs are 17, so I'm just saying 17. But nobody talks about population, that's one reason. But the second reason is that I felt that population was the most important aspect of sustainability which nobody talks about. This is the focus area of Mobius Foundation, is education. Now, these are both long-term issues which will help sustainability, because if you're looking about population stabilization, it's a minimum 60 years to 100 years before it stabilizes. If I were to turn, like journalists generally tend to sort of be a little skeptical, only for the reason that there is a lot of talk now in this country on population. There is more and more conversation around climate action. But the reality at the end of the day is that there isn't enough action on the ground. Do you believe that these are all wake-up calls? All these events that are taking place are, in a sense, wake-up calls. That this is a country, unless the disaster hits you right in your face, you don't wake up to the reality despite all the conversations around it. That you're partly correct, but I wouldn't give it all the way, because we've been talking about population stabilization from the time of 1947. Now, people are taking action because they feel, really because of climate change, they're taking action. There's all these things are due to climate change. They don't look at population. They don't look at population. But population has automatically been controlled by education. It is already less than TFR, what you call the total fertility rate, is below 2.0 in all the countries except maybe Nigeria and all the Western countries that are developed. They are educated, and it is below 2.0. India has still got 100 districts, over 100 districts that are above 2.0. And we intend to go to 100 districts to provide contraception and to control the population. A final message to a younger audience out there? I think the main issue to be looked at is that the planet is being poisoned, the climate is being destroyed, and it is your future that you have to save. So save nature and do something about it. Join some group or the other. I wouldn't say anything about population, because anybody that's educated is not going to have more than one child, because they can't get into school. The major problem today among youngsters is that they cannot get their children into the school that they want. This is the major problem. So they will automatically have less children. That is no problem. But loving nature, saying that nature is what I live on, and therefore I need to protect it, otherwise I will die. Congratulations for putting all this together, Mr. Burman. Give a big hand to someone who's actually driving this entire foundation. Mr. Burman, thank you very much. Thank you so much.
हिंदी में पैनल चर्चा को आगे बढ़ाया सईद अंसारी ने। चर्चा का विषय था जनसंख्या, जलवायु और जीवन। बहुत धन्यवाद आप सभी का ICSC के तहत हमारे इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही डॉक्टर सिंह करना चाहते हैं। ये जो अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हुई जनसंख्या है डॉक्टर गोविंद सिंह, ये हम पर कितना बुरा प्रभाव डाल रही है और इसका जो प्रभाव है वो कैसे हमारे पूरे जीवन पर, हमारी जलवायु पर पड़ रहा है। जो आबादी है वो वाकई बहुत ही एक भयानक विस्फोट की तरह से हमारे ऊपर पड़ी है। 1947 में 30-32 करोड़ की आबादी वाला देश आज 1 अरब 42-43 करोड़ पर पहुंच चुका है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। हम दुनिया के नंबर 1 देश बन चुके हैं इस मामले में। तो ऐसे में समस्याएं जो है वो विकराल से विकरालतर होती जा रही हैं, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो उतने ही हाथों को रोजगार चाहिए, उतने खाना चाहिए, उतना पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो ये सब चीज़ें चाहिए उसको। और ये आएंगी कहाँ से? जब सीमित संख्या में चीज़ें हैं, सीमित मात्रा में हैं, तो आएंगी कहाँ से? तो बहुत घनघोर समस्या एक तरह से है। तो ऐसे में जो है सारी दुनिया के सामने एक भयानक सवाल है कि कैसे योजनाएं बनाई जाएं और एक संतुलित किस्म का विकास हो। सारा भाई जी, सर कई बार ये कहा जाता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी युवा शक्ति बढ़ रही है और वो जो युवा शक्ति है वो हमारे देश के विकास में योगदान करेगी। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ समस्या पर बात करें तो आज हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आपकी दृष्टि में सर इसका कारण क्या है? क्यों हमारे देश में ही आखिर जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? इसमें कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक मुझे बात करनी है कि यहाँ एक मान्यता है कि हमको एक लड़का तो चाहिए। अगर लड़का नहीं है तो बुढ़ापे में कोई संभालेगा नहीं, कोई संभालेगा कौन? और अपनी अंतिम अग्नि संस्कार भी जो करने हैं तो वो लड़का ही होना चाहिए। और ये जो लड़की और लड़के की जो समझ है वो सबसे पहले तो सोच बदलनी चाहिए। तो ये एक तो अपने देश की एक बहुत गलत फहमी है जो चेंज करनी की। हुमा जी, आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में। महिलाओं का अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अगर सबसे अधिक असर होता है, प्रभाव होता है, तो शायद गलत नहीं होगा। और महिलाओं के साथ साथ उनकी हेल्थ और उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके बच्चे, ये डायरेक्टली सीधे उससे प्रभावित होते हैं। कैसे देखती हैं आप बढ़ती जनसंख्या को महिलाओं के लिए एक अभिशाप के तौर पर? मैम, अगर हम सिर्फ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2000 में अभी फॉर्म हुई और वहाँ से अगर हम इस कहानी को देखें, और हम बहुत पहले नहीं जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि सरकार जो है और एंड मैनी पीपल हैव सेड दैट दे आर ऑन द राइट ट्रैक, सही कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या को कम करना चाहिए। और हमने हर तरह की कोशिशें की हैं, जैसे कि हमने फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ करने के लिए कोशिश की, तो उसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। और इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, जैसे कि आप एडवोकेसी प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं, आशा वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पर इसके साथ साथ हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या महिला का इसमें एग्रीमेंट है कि नहीं, क्या उस गृहिणी का एग्रीमेंट है कि नहीं, क्या उन लड़कियों को आपने इनफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहले से दी है कि नहीं। हम चाहते हैं कि अर्ली मैरिजेस ना हो, हम रिड्यूस करना चाहते हैं मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर हम फिर सेक्स सिलेक्शन भी करते हैं। हमारे जो एडवोकेसी है उसमें हमने सही प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है उसका अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हम चाइना से ऊपर आ गए। डॉक्टर बूच, सर 1 वर्ष से अधिक हो गया है और विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी, इस प्रोग्राम के तहत आप एडवोकेसी, जागरूकता फैलाने वाले
बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और ये एक बड़ा लंबा समय होता है। आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में सफल हो पाए हैं? विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी मुहिम है जिसको मोबियस फाउंडेशन ने शुरू किया इस उद्देश्य से, जो समस्याएं श्री कार्तिकेय साराभाई और हुमा जी या गोविंद सिंह ने जो यहाँ बताई, उन सारी समस्याओं को कैसे जो है हम जनमानस तक, एक तो वहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, ख़ास तौर से महिलाओं तक कैसे हम उनको सशक्त बना सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। हम ग्राउंड में भी कर रहे हैं काम, जो हाई TFR वाले ज़िले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वहाँ हम लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं और वहाँ जो कंट्रासेप्टिव्स हैं या जो हेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज है और शिक्षा है, ये सारी चीज़ें एक साथ एक तरह से एक मिला जुला प्रयास है। हम चाहते हैं कि हम इस समस्या को एक तरह से समस्या न मानकर एक पॉजिटिव जो है वे में इसको टैकल कर सकें। डॉक्टर सिंह, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि सरकारें कुछ भी करें, कितना भी काम करें, मोबियस फाउंडेशन, यूनेस्को जैसी संस्थाएं काफ़ी काम करें, क्या आपको डॉक्टर सिंह ये लगता है कि जब तक आपकी, हमारी, हम सब लोगों की भागीदारी नहीं होगी, समाज इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तब तक इस तरह के प्रोग्राम्स सफल नहीं हो सकते? वास्तव में जो सुधार है वो तो केवल सरकार के भरोसे बैठने से नहीं होगा, हम सभी को लगना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की है। मैडम ने भी कहा, अभी हुमा जी ने भी और साराभाई जी ने भी कहा कि शिक्षा के बिना जो है वो सब कुछ अधूरा है। तो एक तो मुझे लगता है कि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है और यदि शिक्षा अच्छी शिक्षा समाज में फैले तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। कार्तिकेय साहब, छोटा सा प्रश्न, बात ही करते रहेंगे हम, कुछ समाधान भी दीजिए। कुछ है आपकी दृष्टि में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ आपके पास? जनसंख्या की जो बात है वो अलग सी बात नहीं है, वो विकास और शिक्षण, विकास और एजुकेशन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। गोविंद जी ने जब बताया कि सबसे अच्छी प्रोग्राम तो ये होती है कि हर चाइल्ड इंडिया में वो शिक्षा उनको मिले, मिनिमम टीचिंग मिले, तो ये करने की जरूरत है और विकास की जरूरत है। मैम, हुमा जी आपकी संस्था यूनेस्को, मोबियस फाउंडेशन और इस तरह की बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वर्षों से कर रही हैं और एडवोकेसी, जागरूकता फैलाना, सब कुछ करते हुए आपको लगता है मैम कि काम जिस दिशा में होना चाहिए हो रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है, या काम किए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है? आई एम सो सॉरी, कोई असर नहीं हो रहा है? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 2030 में एक टारगेट है और सारी मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया है, साइन किया है और उन टारगेट्स को फुलफिल करना है। हमारी जैसी संस्थाओं का काम है कि हम फैसिलिटेट करें, आइदर कोई नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ बना के और एनहांस करना उन पॉलिसीज़ को जो सरकार की हैं। हम लोगों का काम होता है कि हम नॉलेज और रिसोर्सेज बनाएं और उनको शेयर करें, वो टूल्स बनाएं, जैसे कि UNDESA है और पॉपुलेशन कमीशन बनता है, इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट कराए जाते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि देश जो है वो उन मुद्दों को डिस्कस करे, उन पे अटेंशन लाए। हम ट्रेनिंग टूल्स बनाते हैं और हम एनकरेज करते हैं कि आईना इन नॉट इन अ नेगेटिव वे पर इन अ पॉजिटिव वे, कि कैसे हम इम्प्रूव कर पाएं इन ऑर्डर टू रीच दैट सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। डॉक्टर बूच, राम बूच सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, हुमा जी ने कहा कि भाई बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अब तो खत्म पॉपुलेशन, तो कुछ वर्षों में अगर ऐसा रहा तो TFR तो स्थिर हो जाएगा सर। अब चाइना ने अपनी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है, पॉपुलेशन
ऐसे में ये जो विराम, एजेंडा सस्टेनेबिलिटी, यूनेस्को और दूसरे लोग हैं, आपका ये प्रासंगिक रह जाता है सर प्रोग्राम? ज़रूर जनसंख्या कई देशों में जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइज हो चुकी है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR है वो 2 या उससे नीचे पहुंच गया है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। ये जिसको हम कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है पॉपुलेशन का वो तो जारी रहे। भारत की भी पॉपुलेशन अभी जो है एक तरह से 2.1 के आसपास है, जो कि स्टेबल है। कुछ जगहों पे ज़्यादा है TFR रेट, कुछ जगहों पे कम है, लेकिन ओवरऑल स्टेबलाइज्ड है। लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन पहुंच जाएगी 2030 तक और 1.6 तक 2050 तक। तो बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारे संसाधनों पर है। हमारी जो सस्टेनेबिलिटी एजेंडा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, इसको संतुलित रखें, ये तभी संभव है जब आबादी भी संतुलित हो और दबाव कम हो। जो जैव विविधता, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो प्रकृति है, उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या है, क्योंकि हम उनका दोहन कर रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में जो फैक्टर्स हैं इसको बढ़ाने में, वो उसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी ज़रूरतें, क्योंकि जो कंजम्पशन है उसी हिसाब से प्रोडक्शन है, और ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ये जो दुष्चक्र है, इनका जो विशेष सर्किल है, वो जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस जारी रखना है और उसमें इस तरह के कार्यक्रमों, जो शिक्षा, जागरूकता, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें जो एक मिली जुली जो हमारा प्रयास है, एक कंपोजिट इनिशिएटिव, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय साराभाई जी, हुमा मसूद जी, डॉक्टर रामबोज, डॉक्टर गोविंद सिंह, आप सभी का हमारी सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है, कदम है जनसंख्या नियंत्रण के लिए और अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट को संभालने के लिए। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों का एक बार बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।